के यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में बांग्लादेश को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि जनवरी से वहां कशीदगी है। बांग्लादेश में जून जुलाई में तशद्दुद हुआ, वहां की सियासी जमातों से राब्ते में थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बांग्लादेश में हालात बदले और हालात इस तरह बदले कि हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को हालात सबसे ज्यादा खराब हुए। एस जयशंकर ने कहा कि अक़लियतों पर हमले सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। हम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ राब्ते में हैं। बहुत से तलबा वापस आ चुके हैं। हमारा सफारत खाना फ़आल है। हमें उम्मीद है कि वहाँ की हुकूमत हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। As honourable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that.
but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. तो आपने सुना एस जयशंकर ने उस हालात का जिक्र किया है, उन हालात, लेकिन हालात में इस वक्त हिंदुस्तान कैसे बहुत करीब से नज़र रखे हुआ है। और शेख हसीना जो कल तक का प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो किन हालात में हिंदुस्तान पहुंची, किस तरह से उन्होंने मदद या अप्रूवल मांगी और कितनी अचानक ये सब कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आमिरों को बांग्लादेश के हालात से सबक सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बरामद का यही हश्र होगा, यानी हर आमिर का, जितने भी आमिर यानी जो डिक्टेटरशिप वाली जो उसका कह सकते हैं नजरिया या इसके तरह के लोग जो है उनका यही हश्र होगा। इस मुल्क में बच्चों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा था, यानी बांग्लादेश में, और मईशत काफी नीचे थी और मईशत के साथ अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं थे। बच्चों ने एक मुहिम शुरू की जिस पर कोई काबू नहीं पा सका। लोग सब्र कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर शेख हसीना वहां से न बचकर निकलती तो उनके साथ और भी बुरा हो सकता था, ऐसा कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे। और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए ये है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा। और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ थी। बात यही थी कि अगर ये वहाँ से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहाँ से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। ताखीर हुकूमत की तरफ से हुई है। इस ताखीर की वजह यह है कि उनके लोग आज़ादी के साथ रैलियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दे। अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से ज़रूर एक बात कहूँगा, वो ये ना करें जो उनने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ होशियार रहें, कहीं यहाँ भी वैसी गलतियाँ न करें जिससे जो भी कुछ यहाँ पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े। मैं समझता हर एक पर तैयार है, हर एक काफ़ी वक्त से तैयार है। यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं इनके डिले करने का मकसद क्या है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक में हरियाणा के सीएम, पूर्व सीएम मोहन लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हुए शरीक। दिल्ली में सोनिया दुल्हन कांग्रेस में हुई शामिल। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत से किया इनकार। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ली केजरीवाल की चुटकी, कहा इस समय यमुना का पानी तो गंदा है, इन्हें किसी अच्छे पानी के तालाब में डूब के मर जाना चाहिए। अंबाला पुलिस रेंज के कर्मचारियों को मिली पदोन्नति, करीब 300 से ज्यादा कर्मचारियों को बनाया गया सब इंस्पेक्टर। हरियाणा सरकार का कर्मचारियों ने जताया आभार। धुंधेरी में 12वें दिन भी जारी रहा एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल। हड़ताल पर बैठी महिला कर्मचारियों ने लगाई मेहंदी, मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखेंगे कर्मचारी। हड़ताल को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है सरकार। फतेहाबाद में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का 12वां दिन, प्रदर्शनकारियों का ऐलान, 4 दिन करेंगे अनशन। सरकार ने नहीं मांगी के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एलएचआरई जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर इलाकाई जमातों का गलबा रहा है। जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत में एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील में नई दिल्ली की बहुत ज्यादा तवज्जो और मुदाखलत रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी जैसी सियासी जमातों के लिए क्या तब्दीली आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम भट्ट का कहना है कि हमारे ज्यादातर रहनुमाओं ने तंसीख के बाद पार्टी छोड़ दी, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत सारे रहनुमा वापस शामिल हुए। अब्दुल क़य्यूम ने इसराती अंदाज में कहा कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बस भरी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ सीटें बाकी हैं और ये बस फौरन दिल्ली जाएगी, इसलिए पीडीपी के साथ सफर करने का ये बेहतरीन वक्त है। देखो, हमारा बड़ा मुश्किल दौर था। 5 साल में हमें लगभग 75% 80% हमारी पार्टी को हमारे पार्टी से लोग चले गए, लीडरशिप क्राइसिस हो गई। लेकिन इसको कहते हैं ना कि जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है बुज़ुर्ग की, तो फिर बच्चों पर वो छोटे बच्चे फिर पनपते हैं, वो अपने एहसास और अपने जज्बात को काम लेकर आगे चलते हैं। इसी तरह हमने पीडीपी को आज बच्चों ने इस हाल तक पहुंचा है कि अब जो हमारी गाड़ी से जो सवारियां उतरी हैं, तो अब उनको मन करता है कि हम इस गाड़ी में सवार हो जाएं। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारी गाड़ी चलने लगी। और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ श्रीनगर में सिर्फ 2 ही गाड़ी दिल्ली को जाने के लिए, एक एनसी, उसमें सवारियाँ फुल है। पीडीपी वाली जो है इसमें कुछ उतरे, तो अब हमने ट्रैक पर गाड़ी को लाया। अब वो दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको तलाशी लेकर अंदर इजाज़त देंगे, ठीक है ना। हमें सफ़र दिल्ली तक ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत कैडर के साथ वादी की सबसे पुरानी सियासी जमातों में से एक है। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भारी अक्सरियत से जीती है। एनसी को 3 में से 2 सीटें मिली हैं, लेकिन जो हार गए वो पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान रहनुमा और तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये शेर कश्मीर था जिसने आर्टिकल 370 और 35A के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जंग लड़ी। हमने हमेशा कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में प्रॉक्सी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार बनाकर हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। तो अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ और स्टैंड की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ये लोग जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर पाए और जिन्होंने अपने ज़र खरीदे हुए गुलामों को इलेक्शन में डाला, उनकी तो ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। जिसको बीजेपी सपोर्ट करती थी, जिन पार्टीज़ को, उनकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई। ये तो अब आपके सामने आयान है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ है वो 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक कैडर है, जो पार्टी के तर्जुमान और लीडरों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी में शामिल हुए हैं।
5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बदला, जम्मू कश्मीर बदला, और जो बदले हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी बदल गया है। जहां कभी हम देखते थे 2014 से पहले, इन 10 सालों से पहले बीजेपी अनटचेबल पार्टी मानी जाती थी कश्मीर में। आज अगर देखेंगे 7.5 लाख मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के खाली कश्मीर में हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 10 मार्च से 1 जून तक 37,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मेंबरशिप कितनी हुई है वो 7.5 लाख के बराबर है। जहां यहाँ टायर गैस शेलिंग बंद हुई, ग्रेनेड बंद हुई, या स्टोन पेल्टिंग बंद हुई, हड़ताल बंद हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। न्यूज 18 JKLH के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट। और चक से बटागुंड तक तामीर की जा रही सड़क के काम से अवाम नाखुश है। PMGSY की जानिब से सड़क पर तामीर और तजदीद के काम में नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की कुशादगी 30 फीट होनी चाहिए, लेकिन महकमा ने सड़क की तामीर में ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखा है। इनका इल्जाम है कि असर और रसूख वाले अफराद के घरों के नज़दीक अराजी को छेड़ा नहीं गया है, लेकिन गरीबों का इस्तेसाल किया गया है। PMGSY ने फ़ोन पर जानकारी देते हुए कहा है कि अवामी शिकायत का इजाला किया जाएगा और ज़ाब्ते के मुताबिक सड़क की तामीर की जाएगी। रोड यह गोस दशो साइडो नेरुन बराबर। अगर यह 30 फुट यह गोस होड़ ते नेरुन 15 फुट, योड़ ते नेरुन 15 फुट। बेहद तेल त्रावन, अत गस धांधली गई तेल त्रावनस मज। यह गवर्नमेंट शेड्यूल से गो त्रावन बराबर जनाब नेरुन। यह 30 फुट यह 40 फुट यह गोस दशो। अत गस गरीबन जुल्म गसन। कंस मकान वथन वथनस, कंस दुकान वथन वथनस। यह गोस दोनों साइड नेरुन बराबर। अहन गरीबन अहन हूँ गो पकुन। यह 20 फुट यह 30 फुट यह 40 फुट यह गोस दशो साइडो मेन पे होकुन तीन तीसान, योकुन तीसान बराबर। ये डबल रोड फायदे फायदे ये गाड़ी पार ग डबल गाड़ी हिंचन जिक्री है कि यहाँ से रोड बन रहा है, क्योंकि मुश्किलात बहुत सारे हो रहे हैं। अभी इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं और कोई बीमार पड़ता है तो गाड़ी से जाना पड़ता है। यहाँ से एक गाड़ी भी पार नहीं होती है, तो रोड कभी ब्लॉक होता है, कभी बड़ी गाड़ी आती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो रोड ऑलरेडी मतलब ब्लॉकड होता है। उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये जो डबल रोड बन रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि मतलब ये जो रोड है ये बिल्कुल मतलब लेफ़्ट साइड से भी 15 फीट निकलना चाहिए और राइट साइड से भी 15 फीट निकलना चाहिए। कहीं पे कोई करप्शन या कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे उनको क्या होता है, उनकी आवाज़ आगे जो मतलब ऑफिसर्स है वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। जो मतलब अच्छे खासे घराने के होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिश्वत या करप्शन पैसे दे के मतलब खरीदते हैं इन लोगों को और अपना जो एरिया है, अपना जो दुकानें हैं, बिल्डिंग्स है, उनको बचा लेते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोड दोनों साइड से सेम निकलना चाहिए। 15 फीट एक साइड से, 15 फीट दूसरी तरफ से, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोड यह सड़क गन हिश ये हान बन तरफ कड़ी तीन गई एडमि तरफ कड़ी। अड़न जान कड़ान ज्यादा, अड़न जान कड़ान कम। अरस रसूख वोल बड़ मुई आए रियायत करान, गरीब जुलूम करान ज्यादा। हमन करान तुत तिस यहाँ दिवान बंद, तिस यहाँ कड़ान अत यमो दोप गो 2-3 फुट त्रो 10 फुट अत पे मैगडम पे पे दोप ये 15 फुट। अड़न जी जान यह कम ये साइड नेरान गए खुश, रोड द्रायो अस त्रो जमीन तह, मगर यमो कर ये थोड़ा धांधली, यमो कड़ अड़न जान कम, अड़न जान कड़ ज्यादा। अपील हाकिमन तान वात यह कत अपील कर यह गस नेरन हिश यह सड़क। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत की तरफ से दर्जनों हैंडपंप लगाए गए हैं, ताकि जिले में जहां कहीं भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना है, ये हैंडपंप उन लोगों को राहत फराहम कर सकें। लोगों का कहना है कि ये हैंडपंप पिछले कई सालों से मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिला डोडा में लाखों रुपए मालियत का यह प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया और महकमा ग्राउंड वाटर ने इन हैंडपंपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सर, इससे फिलहाल फ़ायदा तो होता था हमारे को ठीक ठाक, लेकिन ये कई सालों से लगाए गए, इधर कोई आता नहीं है, रिपेयर किया नहीं, ये ख़राब पड़े हुए, तो लोगों को दिक्कत पड़ती है। सर, ये गर्मी का टाइम है, डंगरू मवेशियों को पानी, और ये जहाँ जहाँ लगाने चाहिए थे सर, इन्होंने वहाँ पर लगाए नहीं। अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ
लगाइए, अपनी मर्जी से लगाइए सर। स्कूल में जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे स्कूल का जो पंप है वह पहले चलता था, आज वह नहीं चल रहा है। तो इसी से हमारा जो सफ़र है वो बहुत दूर, यहाँ से लगभग हमें 3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो हमें थोड़ा पानी के बारे में ध्यान दीजिए। कि लगभग ज़्यादा नहीं, अगर 5-10 लाख रुपए इस चीज़ के पीछे अगर खर्चा हुआ है तो तभी ये चीज़ अच्छे तरीके से रन नहीं करती है। तो ये हमारे लिए अगर बनाया गया है तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से अगर रन किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, लगभग 10-15-20 लाख का प्रोजेक्ट होगा एक हैंडपम्प का। हमारे एरिया में अगर देखा जाए, हमारे जहाँ जोधपुर में हम रहते हैं, मैक्सिमम पंप की बात करें, मैक्सिमम हैंडपम्प की बात करें तो सभी अभी बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा पंप नहीं है जो फंक्शन कर रहा है। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि इतना पैसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खर्च रही है तो फंक्शन इसको प्रॉपरली करें। ये तो इनको बहुत साल हो गए लगे हुए, मगर सिर्फ 2 साल ये पंप चला है, उसके बाद ये पंप चला ही नहीं है। ना कोई यहाँ पे कोई आया है कि हाँ जी यहाँ पे पानी है, पंप चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसके बाद ये बंदी है, आज समझो आज तक ये बंदी है। अब ये सिर्फ देखने के लिए रहा है कि हाँ जी हमारे पास पंप है। आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे ऐसे वाटर स्कार्स एरिया जो कि गवर्नमेंट को बताया भी गया है और हर किसी की नॉलेज में है, उनके हैंड पंप्स को रिपेयर करने के लिए हमने इस साल की फंडिंग दी है। 65 हैंड पंप्स इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वाटर स्कार्स एरिया, जो कि पंचाई चिराला एरिया हो गया या भद्रवा के कुछ इलाके हो गए, उनको रिपेयर करने के लिए इस प्लान में हमने उसको कवर किया है और जल्द उन पे काम शुरू होगा। और मुझे उम्मीद है कि जल जीवन मिशन, अमृत और ये हैंडपंप रिपेयर, ये सब मिलजुल के लोगों के जो पानी के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में कारगर साबित होंगे। और जिला पुलवामा के शेखारा इलाके में 14 साल कबल महकमा जल शक्ति की जानिब से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जबकि शेखारा और इसके मुल्हका इलाकों में पीने के पानी की काफी किल्लत पाई जा रही है। 14 साल से पहले शेखारा की मकामी आबादी ने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जमीन भी वक्फ की थी, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम का काम सिर्फ 90% का मुकम्मल किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमा जल शक्ति को दरख्वास्त भी दी गई थी, लेकिन महकमा की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हमारी सर यहाँ पे ये जो पीएच की प्रॉब्लम, ये पानी की किल्लत है। 2014 में हमारी ये टंकी बनी हुई है, लेकिन 2014 से हम सर सफ़र कर रहे हैं और वहाँ डिपार्टमेंट में हम गए थे, हमने बहुत सारी शिकायत की, लेकिन वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये स्कीम चालू है, लेकिन हम सर लगभग 10 साल 12 साल से पानी की किल्लत से महरूम हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने सर ग्रीवेंस सेल में भी इसकी कंप्लेंट की थी। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं, खासकर हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस मसले का हल निकालिए। अमिश शिकायत तथ आव ना रेस्पॉन्डा कहें, अतन वन बीजेपी वन सबका साथ सबका विकास, मगर अ समझी कत तंजीमो थी कुने ना विकास ना कहें। पतमें 7 जनवरी मज गोडनिक फिर ओतर त्रोमुत R&B मैगडम तिहंद शुक्र गुजार, मगर मेन वुनकस। और नौशहरा फॉरेस्ट डिवीजन ने शहीदों के नाम पर एक दरख्त लगाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। नौशहरा फॉरेस्ट डिवीजन के फॉरेस्ट रेंज ने शोहदा के नाम एक दरख्त के बैनर तले शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। नगरवान नौशहरा में इन शोहदा की बेमिसाल जज्बे को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिन्होंने अपने फर्ज के लिए बेमिसाल बहादुरी और लगन का मुजाहिरा किया। सीज़न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हैं 2 स्कीम्स हैं, स्लोगन्स भी हैं और स्कीम्स भी हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमें इस पूरे टोटल जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पेड़ लगाने हैं और लोगों को भी जो है पेड़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक स्कीम का नाम जो है वो है एक पेड़ माँ का नाम, जिसमें जो है कमिटमेंट है एक हमारे मदर अर्थ के लिए कि हमें जो है इसको हरा भरा करना है। इसके साथ ही एक और फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है एक पेड़ शहीदों के नाम, जो 1 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक संपूर्ण जम्मू कश्मीर में जो है इसको किया जाएगा। हमारा ग्रीन कवर जो है वो कैसे बढ़ाया जाए और हमारा जो क्लाइमेट जो वेदर के जो चेंजेस आ रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जो ड्रॉट्स हैं जहाँ फ्लड्स वगैरह इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके साथ साथ हमारे जो मौजूद अशखास हैं उनके साथ जो हमारे PRIs एक्स PRIs हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।